बाथरूम में जो पर्सनल केयर पड़ी है, इट टेल्स यू अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर कि ये बंदा वैसे तो बोल रहा था मैं सस्टेनेबल हूँ, सारे प्रोडक्ट प्लास्टिक की पैकेजिंग में है, जब ये इसका मतलब ये जब प्रोडक्ट खरीदता है तो ये अपनी सस्टेनेबिलिटी भूल जाता है, क्योंकि वैनिटी टेक्स ओवर, विच बेसिकली मीन्स कि अगर इसको जो प्रोडक्ट बाहर दिखता है, उसका हैंड बैग है, वो उसको दिखाना है। ये आईफोन बिना चार्जर के आता है ये बोल के कि इसमें पेपर कम लगेगा, तो वो मतलब वो अपने आप को समझा रहा है, बट जब अंदर माल जो पड़ा हुआ है बाथरूम के अंदर वो सब प्लास्टिक है। लर्न सो मच यार जस्ट बाय बीइंग एन ऑब्जर्वर। ये बोलता तो ये है कि मैं सस्टेनेबल ग्रीन चीज़ ग्रीन उसमें बिलीव करता हूँ, अंदर जो पड़े हैं प्रोडक्ट वो सब एक्टिव्स हैं। हाँ, सो sometimes what somebody is saying and what they are doing, there's a difference, and you have to be an observer of that, to be very sharp observer of it, and insights I think will come from there, or that is one of the, in my opinion, a very interesting way of bringing out insights. ओके। आई थिंक सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा नैरेटिव। मैं परसों ही किसी से बात कर रहा था और गोवर्धन वाले दिन, और हम यही बात कर रहे थे, उन्होंने बोला सस्टेनेबिलिटी इज़ बिकमिंग अ न्यू थिंग। पीपल आर जस्ट टॉकिंग, आई थिंक पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। I think there's a lot of dissonance, or what do you call, it's like a big dichotomy between what people are saying and what they are doing. They're doing. When it comes about using their wallets to live up to their sustainability ideals, they're not showing They will up. not. And this is not just in India, it's globally. Do you know how I have actually started to see the data now? I go, उस कैटेगरी का इन्फ्लुएंसर उठाओ, उसके फॉलोअर्स देखो, उसका एंगेजमेंट देख लो, यू विल अंडरस्टैंड। अगर सस्टेनेबल, मैं Give me an example. सस्टेनेबिलिटी पे ही बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर आई मेट एन इन्फ्लुएंसर हु वाज मेकिंग सस्टेनेबल कंटेंट ऑन क्लोथिंग एंड वन अनदर इन्फ्लुएंसर, एक कोई बुक मीटअप था, अनदर इन्फ्लुएंसर हु वाज मेकिंग सस्टेनेबिलिटी ऑन द जेनरिक, ठीक है, लाइफस्टाइल। एक के आई थिंक वाज 80K फॉलोअर्स एंड अनदर वाज एट 52। एक साल निकल गया, 80K वाली इज़ एट 81, 52 वाली इज़ एट 52। तो content they are pushing it, doing everything. Then I also got a chance to talk to them. तो बताया उन्होंने कि भाई यार people they talk about it but nobody is very interested. Interesting. तो मैं कहा यार, But follower count as a proxy for that, I personally wouldn't believe it. But why, if you're talking about it, you will go and you'll just try to understand it, and understanding is starting from the To followers. me, what is these more days. valuable is what those guys told you when you actually spoke to them. But just by looking at their handles, I would not give it too much weight कि मतलब not that's conclusively. True. Correct. So और engagement में कैसे check करते हो? Comments क्या आ रहे हैं? Of course, comments and आ रहे थे comment. Comments are normal जो कुछ 5-10 लोग बंदे की investment कितनी है कुछ comment करने में? कोई कुछ भी लिख देता है उठा के यार। मैंने तो ये notice किया। Well, I did a bit of content creation as well. हाँ, but I think comment करना भी अपने आप में will become a job eventually. It will have money in it, क्योंकि people are more invested in comments these days, more than they are checking out reels now. You know this? Wow. Very cool. मैं अगर you wanna read comments under? Yeah, I do actually. They're spending more time reading the comments than watching the reels. That's insane. That's insane. So I don't know the numbers, but we'll pull out the numbers, मिल जाएंगे। तो रील से ज़्यादा comments consume हो रहे हैं, तो comment is going to become the new monetization scheme. That's eventually. Awesome, man. That's my takeaway for the day, among many other things. Yeah. That's amazing. So comment में खेलना है। वो सही बात है, पढ़ते हैं लोग comment. हाँ, और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उसमें, क्योंकि कमेंट इज़ रॉ करंटली। जहाँ पे कहीं पे भी रील पेड हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, इकलौती चीज़ है अब जो कमेंट बची हुई है, थोड़े दिन में भी हो जाएगा, फिर रिप्लाइज पे आ जाओगे आप। सो वी आर गोइंग डीप इनटू कि कहाँ तक मार्केटिंग हो सकती है। तो फिलहाल वो कमेंट अभी तक प्योर हैं, कमेंट में मार्केटिंग नहीं चल रही है। आई थिंक अटेंशन जहाँ जा रही है बेसिकली, टू फॉलो द अटेंशन। करेक्ट। अभी कहीं मैंने बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी, उसमें लिखा था कि नॉलेज इज नॉट फ्री, यू हैव टू पे अटेंशन। करेक्ट। आप अटेंशन से पे करते हो ना किसी चीज़ के लिए। एवरीबडी पीपल आर नॉट, बहुत कम है अटेंशन। तो सुनने से ज़्यादा समझना, वो सुन नहीं रहे तो समझ भी नहीं आ रहा है। तो आई सी दिस प्रॉब्लम, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम व्हेन आई पोस्ट अ कंटेंट एंड देन आई सी द कमेंट्स। समझा ही नहीं कि बोला क्या है उसमें, और कमेंट पहले कर दिया। ये तो बहुत हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा होता है। एंड दैट इज़ व्हेन आई नो कि मेरे को उस आदमी के लिए सिंप्लीफाई करना जो 6 साल का बच्चा है। मैं जब उतना सिंप्लीफाई करके आई स्पेंड ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स 1 hour। आप इतना जल्दी क्यों बोलते हो आप, ये बताओ पहले। मैं
को कंप्रेस करने के लिए उसको। हाँ बिकॉज 90 सेकेंड ही होते हैं ना, अदरवाइज मैं बहुत धीरे बोलता हूँ। वही दैट्स व्हाट आई एम। हाँ या हाँ मैं बहुत ही धीरे बोलता हूँ और सोच समझ के, बिकॉज अब मेरा मेंटल मॉडल बन गया अजीब सा, दैट व्हेन आई एम टॉकिंग और लिसनिंग टू एनीथिंग, ऐसे 5-6 पॉपअप खुलते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव के, ये और वो आपस में प्रोसेस करके देन आई that's multidisciplinary thinking which you are going through, right? Try You're asking to- me what is it, this is what it is. वो 5-6 खुल इसलिए रहे हैं और वो सिंथेसाइज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन 5-6 को आप डीपली समझ चुके हो।